Bismillahirrahmanirrahim. Here we will discuss Euclid's theorem. This theorem is also called division algorithm. The statement of the theorem is if we have two integers a and b with integer a positive, then there exist unique integers q and r such that b is equal to a q plus r, where r is less than a greater than or equal to 0. Here from this equation we can say that this b is divided by the divisor a, where the integer q will be the quotient and r will be the remainder. This r will be less than a and it will be greater than or equal to 0. In our daily life, we see division of one number by another number. Here this a means the divisor, which will always be positive. So here if we have two integers b and a, where a is positive, so dividing 17 by 5, so 3 is the quotient, and here the remainder is 2. So from this we can write 17 is equal to 5 into 3 plus 2. This 17 is b, this 5 is a, this 3 is q, this 2 is r. So this is the equation which we see here. Moreover, if we divide minus 17 by 5, then we have to take the quotient, which gives us the number which will either be equal to minus 17 or it will be less than minus 17. यहाँ पे हमने उसी नंबर को लाना है जब ये नंबर या तो माइनस 17 के बराबर हो या ये छोटा हो। तो यहाँ पे -4 जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे -20 आएगा। चेंजिंग दी साइन, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 3। सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं तो -17 हम लिखेंगे 5 इंटू -4 और 3 रिमाइंडर है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें इन दोनों डिवीजन में, तो यहाँ पे जो कोशंट हमने लगाया है जिसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर आ चुका है ये ग्रेटर है। दिस 15 is greater than from -17, so we get the negative remainder. So here this division is not true according to the statement of this theorem. Moreover, if we divide -17 by 5 and if we use the quotient -3, then here we will get -15. -15 is also greater than -17, just like 15. This number, this 15 is greater than -17, so here we get the wrong result. Similarly, -15 is greater than -17, so here again we get the wrong information. That is, the remainder should not be 0, and these numbers should not be greater than -17. These numbers should either be equal to -17 or they should be less than -17. अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। Euclid's theorem is a basic result used in our daily life. The greatest common divisor of integer is found by using this method. To prove the theorem, let us define a set A is equal to b minus ax such that x will be integer so that b minus ax will be greater or equal to 0. तो इसी थ्योरम को साबित करने के लिए हम एक सेट लेते हैं और इसी सेट के मेंबर्स b माइनस ए एक्स होंगे। x हमारे पास वो इंटीजर होंगे जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हमें, और इसमें या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर इसमें 0 है तो 0 इसका लीस्ट एलिमेंट होगा, अगर 0 इसमें शामिल ना हो तो कोई दूसरा अदद इसका लीस्ट एलिमेंट होगा जिसको हम r से जाहिर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टू प्रूव दैट सेट A is non-empty, so let us choose an integer x equal to minus b mod. This is an integer and we have chosen it from the set of integer. Now we have to check whether set A is empty or not. तो अब अगर इस x को अगर हम -a से ज़रब दें तो ये -ax आएगा, इन दोनों का ज़रब ये वाला आएगा। अब ये क्या है, दिस a is a positive number, दिस इज आवर डिवाइजर which is positive. b mod ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। the product of positive number is again positive, और b क्या है, b में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा,
this product will either be equal to b mod or it will be greater than b mod. अगर a 1 हो तो दोनों इक्वल होगा, और अगर a 1 ना हो बल्कि a 1 से ग्रेटर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर ये प्रोडक्ट b mod से बड़ा होगा। इसके लिए b mod हमेशा माइनस बी के बराबर होगा या इसकी वैल्यू माइनस बी से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे हम b की जगह अगर हम -3 पुट कर ले और यह भी अगर हम माइनस पुट करें तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे +3 बनेगा, यह भी +3 आएगा। तो जब यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो इक्वलिटी होल्ड होगी, और अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट करें तो यहाँ पे 3 mod इक्वल टू 3, अगर यहाँ पे हम 3 पुट करें तो -3, तो 3 इज ग्रेटर देन -3। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में हम इन टर्म्स को इग्नोर करते हैं, हम इसको लेते हैं और लास्ट को लेते हैं। अब -b को हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या है, b minus ax greater equal to 0 where x is minus b mod belong to z। तो अगर z से हम इसी इंटीजर को ले ले और अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर ले तो इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 आएगी या 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये कि सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है। If we put value of x from integer and this b minus ax, the value will either be 0 or greater than 0. It means the set A is non-empty. अब वो सेट A non-empty है तो इसमें 0 हो सकता है या 0 इसमें नहीं हो सकता है। अगर 0 है तो 0 इसका लीस्ट एलिमेंट है, अगर 0 नहीं है कोई दूसरा आदद लीस्ट एलिमेंट होगा जिसको हम r से जाहिर करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Since set A is a non-empty subset of W, therefore A has a minimum that is least element denoted by R. अगर सेट A में 0 हो तो 0 लीस्ट एलिमेंट होगा, अगर 0 ना हो तो फिर कोई दूसरा आदद लीस्ट एलिमेंट होगा और उसी आदद को हमने R से जाहिर किया। So R belong to A। अब वो R क्या है, this R। Since R belong to A तो अब वो अगर हम b minus ax, हमारे पास a का जो मेंबर है b minus ax है, अगर x की जगह अगर हम q पुट कर ले तो ये b minus a q बनेगा और इसको हमने r से यहाँ पे जाहिर किया है। Since this R is the least element of A, so it belongs to A, and this R will be in the form of b minus ax for x is equal to q belong to Z, so this R is equal to this one, simplifying b is equal to aq plus r. This is the result stated in the statement of Euclid's theorem। Euclid's theorem में इसको डिस्कस हो चुका है कि b बराबर होगा aq प्लस r। तो इसको तो हमने साबित किया, अब हमने साबित करना है r लेस देन a ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r क्या है, r इज अ मेंबर ऑफ a, r मेंबर ऑफ a है और a के मेंबर क्या है, for x this member will either be 0 or greater than 0। r के a के जितने भी मेंबर है वो तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, b minus ax greater equal to 0। तो चूंकि r a में एक मेंबर है लिहाजा r will be greater equal to 0। तो यहाँ पे r greater equal to 0 ये साबित हो गया। अब हमने इसी पार्ट को वाज़ेह करना है। Now we prove r less than a। Suppose r is not less than a। हमने साबित करना है r less than a, लेकिन हम कहते हैं suppose it is not less than a। तो अगर r a से छोटा ना हो तो फिर r greater equal to a होगा, या a हम इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं r minus a greater equal to 0। r minus a हमारे पास क्या है, इसको हम ये एक नंबर है इंटीजर है, इसको हम r से जाहिर करते हैं। लेट अस डिनोट दिस बाय r1। तो r माइनस a को यहाँ पे r1 से जाहिर किया गया। अब ये क्या है, दिस r इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये अभी हमने प्रूव किया। और ये a क्या है, दिस a इज द डिवाइजर व्हिच हैव बीन स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो द डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू r1, हेंस r1 इज लेस देन r। अगर इसी a को हम इग्नोर कर ले तो r1 r से छोटा होगा। अब इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा
आर की जगह अगर हम इस वैल्यू को पुट कर ले और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, दिस इज अ वैल्यू बिलोंग टू सेट ए। सेट ए में जितनी भी मेंबर्स है वो मेंबर हम जाहिर करते हैं b माइनस ए एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू जेड। तो अगर q प्लस 1 को हम x कहे और x इंटीजर हो तो फिर ये वाला मेंबर a में होगा, यानी r1 a में होगा। और r1 क्या है, दिस r1 इज लेस देन r। यहाँ पे जो वैल्यू मेंबर हमने मिला, सेट ए में एक मेंबर है, लिहाजा r1 सेट ए में है और r1 क्या है, यहाँ पे छोटा है r से। r हमारे पास क्या था, प्रीवियस स्लाइड में r के बारे में हमने लिखा था कि ये r हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है। r was the least, that is minimal element of a। here is a contradiction, r को हमने मिनिमल या लीस्ट एलिमेंट कहा था, लेकिन यहाँ पे r से हमें एक और छोटा मेंबर मिला a का, तो लिहाजा यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गया। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि हमने सपोजिशन रॉन्ग लिया था। हमने यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को रॉन्ग लिया था कि r इज नॉट लेस देन a बट r ग्रेटर इक्वल टू a। तो इसी रॉन्ग सपोजिशन की वजह से हमारे पास जो ये r है, r क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, तो इसके बारे में कंट्राडिक्शन आ गई, लिहाजा ये सपोजिशन गलत है और r लेस देन a ये हमारे पास ट्रू इज। Since r1 belong to a with r1 less than a, this r is least element. Here r was the least element of a. Here is a contradiction. We must have r less than a. तो हमने इस पोजीशन को wrong साबित किया, वो हमारे पास एक wrong रिजल्ट था, लिहाजा r less than a, this is the true information। यहाँ पे क्या है, ये wrong है, लिहाजा this is the true information। अब हमने साबित किया, this is 4, this is the information in 4 to me r greater equal to 0। तो इसी रिजल्ट को और इसी 4 के रिजल्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलता है r लेस देन a greater equal to 0। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया, दिस इज दिस वाज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रूव किया, वी फाउंड दैट b is equal to a q plus r where r is less than a greater equal to 0 q r are integers। तो यहाँ तक हमने थ्योरम को प्रूव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसी इक्वेशन को प्रूव किया और इसके बाद हमने इसी इनइक्वालिटी को प्रूव किया। अब हमने प्रूव करना है कि द कोशेंट q and remainder r are unique। Now we prove that q and r are unique। Therefore, if there exists some q1 r1 belong to z such that अगर q1 और r1 हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर हो तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं या इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूक्लिड्स थ्योरम फॉर r1 लेस देन a ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन, इसको हमने यहाँ पे दोबारा लिखा। अब यहाँ पे है b इज इक्वल टू b, hence the right hand side are equal। अब r1 और r a से इसकी वैल्यू इंडिविजुअली स्मॉलर है, तो r माइनस r1 मॉड ये भी a से छोटा होगा, इसकी वैल्यू a से छोटा और ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। since r1 and r both are separately less than a and both are greater equal to 0, hence the mod of their difference will be less than a and greater equal to 0। तो हमने b इक्वल टू b है तो हमने राइट साइड को इक्वेट किया। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, नाउ टेकिंग मॉड, तो हमने मॉड लिया, a चूंकि पॉजिटिव है तो हमने a को बाहर निकाला। अब यहाँ क्या है, r माइनस r1, तो इसकी जगह हम इसको पुट करते हैं, पुटिंग a इंटू q माइनस q1 फॉर r माइनस r। इस जगह हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे है r माइनस r1, यहाँ भी है r1 माइनस r, तो इन दोनों को हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा r माइनस r1 मॉड। तो ये वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे है, तो इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a इंटू q माइनस q1 विल बी लेस देन a ग्रेटर इक्वल टू 0।
तो ये वाला है, दिस इज आवर रिजल्ट। अब इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू ये पुट किया। अब क्या है, ए पॉजिटिव है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए, या दोनों साइड को 1/a से ज़र दे तो ये आता है। अब ये क्या है, ये इंटीजर्स है, डिफरेंस भी इंटीजर है और ये क्वोशंट भी इंटीजर है। तो एक इंटीजर 0 से शुरू होता है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला इंटीजर 0 है। अब अगर if mod of an integer is 0, then that integer will be 0. From here we can say k is equal to k1, hence the quotient is unique. अब अगर इसी इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पे लिखे और अगर q की जगह हम k1 पुट करें या k1 की जगह अगर हम q पुट करें तो ये कैंसिल होगा, 0 आएगा। या अगर इसको हम इसी 0 को हम यहाँ पे पुट करते 0 आता है, यहाँ से हमें r इक्वल r1 आता है। तो यहाँ हमें मालूम हुआ कि रिमाइंडर इज यूनिक। फ्रॉम हियर वी कैन से द क्वोशिएंट इज यूनिक, फ्रॉम हियर वी कैन से द रिमाइंडर इज यूनिक। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रूफ ऑफ द यूक्लिड्स थ्योरम। और यहाँ तक हमने Q और R की यूनिकनेस को साबित किया। अब हमारे पास यूक्लिड्स थ्योरम में क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूक्लिड्स थ्योरम। वी हैव द फॉलोइंग। अब अगर हम R को 0 कर ले, तो अगर यहाँ पे R हम 0 करें तो हमारे पास ये आता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि A डिवाइड्स B। यहाँ पे A क्या है, इसमें A क्या है, डिवाइजर है, इसमें R क्या है, रिमाइंडर है, इसमें Q क्या है, क्वोशंट है। दैट इज द रिमाइंडर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसको याद रखना चाहिए। अब अगर इस जगह अगर इसी A को हम 2 ले, if we put a is equal to 2, then this equation become this one. यहाँ r क्या है, this r is less than 2 greater than equal to 0, तो r की वैल्यू क्या होगी, r will be equal to 0 1। तो इन r is equal to 0 and 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ये b will be equal to 2q और b will be equal to 2q plus 1। तो 2q क्या है, the number of the form b is equal to 2q are called even। ये इवन नंबर्स है, इवन इंटीजर्स है, और ये वाले क्या है, ऑड नंबर है। दिस व्हाइल द नंबर ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यहाँ पे अगर -20 को अगर हम 4 पे डिवाइड करना चाहे तो ये इक्वेशन आता है। अब अगर हम -21 को 4 पे डिवाइड करना चाहे तो क्वोशंट -x आएगा, और यहाँ पे ये जो नंबर है इट इज लेस देन -21, 3 रिमाइंडर है। तो यहाँ से हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा। द रिमाइंडर r इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड द क्वोशंट q में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्वोशंट नेगेटिव है और यहाँ क्वोशंट नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, और हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इन तीनों में रिमाइंडर नेगेटिव है, so these 3 divisions represent the wrong division. Thank you.